regional directors Yashpal sir and Chauhan sir to please felicitate Honorable Chairman sir. Our students have achieved historic results in NEET UG 2021. The stupendous win of our students at NEET UG 2021 is testimony to the fact that hard work of our students and academic team has once again paid off well. And it is time to celebrate that hard work and achievement of our students. Ladies and gentlemen, let's take this moment together and appreciate our students with a huge round of applause for this historic achievement. As we move ahead, it's time to invite on stage a great leader who has been instrumental in shaping the future of countless students, who has turned the dreams of millions of students and parents into reality. A renowned neurologist, a teacher by heart, his journey from a dedicated teacher that has inspired many students to a successful entrepreneur has been truly inspiring. He has been honored with many national and international prestigious awards. To name a few, Global Education Leaders Award for shaping the dreams of millions of engineering and medical aspirants, IEBF Excellence Awards for 2018 for transforming lives through education by Indo-European Business Forum at the House of Lords, London. And the list is endless. Ladies and gentlemen, with much honor, I would like to invite on stage Honorable Chairman Sir, Shri J.C. Chaudhary Sir, to address the gathering. My dear Managing Director, CEO Sir, all CXOs, parents, and dear students. This is a phenomenon which we are celebrating for the last 33 years. Every year, the evening remains crowded with the successful students. And every year we feel proud that the results are improving, marks are improving. And in 33 years, this is the first and last year when the students have secured 100% marks, 720, which we never had. So this is a great achievement. अब कई बार हम सोचते हैं आसमान को छू लिया है, अब क्या करें, करने को कुछ नहीं है, तो फिर सोचते हैं जरा आसमान को, कहते जरा ऊंचा उठ जाओ, भाई थोड़ा सा कसर रह गई हमारी एनर्जी के अंदर और ऊपर उठना चाहते हैं। तो वही चीज़ ये बच्चों ने करनी है, आगे चल के इससे भी ऊपर जाना है। ये तो बिगिनिंग है, एंड नहीं है। लाइफ में ऐसे बहुत मकाम आएंगे जब प्राउड फील करने के मौके आएंगे, और उन पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनके बच्चों ने सिलेक्शन ली है और उनको प्राउड फील कराया है।
They are very lucky that their children have performed really extremely well. हमारे लाइफ की जो पुस्तक है उसके 3 पन्ने होते हैं, 3 pages of life, जिसमें से पहला पेज पैदा होते ही ईश्वर लिख के भेज देता है, क्योंकि वो जानता है कहाँ किसने पैदा होना है, किस घर में होना है, किस जगह पे होना है, किस वक्त पे होना है, मजदूर के घर होना है, बिलियनर के घर होना है। ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये उसी के हाथ में है कि कहाँ किसी को पैदा करना है। तो ये पहला पन्ना उस पुस्तक का है, इसमें 3 पन्ने होते हैं, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आखिरी पन्ना भी ईश्वर लिख के भेज देता है साथ में, कब किसकी डेथ होनी है, कहाँ होनी है, किस चीज़ से होनी है, किस हालात में होनी है, ये भी किसी को पता नहीं है, ये उसी को पता है। तो 3 पन्ने जो हमारी किताब में लिख के भेजता है साथ में, 2 पन्ने तो वही लिख के भेज देता है। एक पन्ना जो बीच का है वो पन्ना सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ता है कि ये पन्ना तुम्हारा है, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, इसमें तुम जो लिखना चाहो तुम लिख सकते हो। इट इज़ फॉर यू, फॉर नोबडी एल्स। तो सारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को लिखने वाले केवल आप हैं, माँ बाप नहीं है। आपने उसको डिसाइड करना है कि ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है। ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों से कई जनरेशंस के बाद मिलती है, और वो किस्मत वाले होते हैं जिनको ह्यूमन लाइफ मिलती है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, सिंस वी हैव गॉट फ्री ऑफ कॉस्ट easily, we do not evaluate the value of the life. उन कीड़े मकोड़ों से पूछो जो पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं और हमें देखते हैं तो कहते हैं भाई ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ में आ गए, हमें आप रगड़ सकते हो नीचे पैर के लिए। तो ये एक काफ़ी तपस्या के बाद जीवन जो मिलता है, मैं समझता हूँ इस जीवन का हर तरह से आनंद, हर तरह से इसका जूस निकालना, हर तरह से इसको नरिश करना, हर तरह से एंजॉय करना, ताकि कोई तमन्ना रह ना जाए नेक्स्ट जन्म का पता नहीं है क्या होगा। तो इसलिए जी भर के इस जीवन को जिया जाए, जी भर के तपस्या भी करें, जो काम करें जी भर के करें, अधूरा ना करें। अधूरा काम करने वाला कभी उस शिखर पर नहीं पहुंच सकता जिंदगी के अंदर जो कि पूरा काम करने वाला होता है। लाइफ के अंदर फैसले एक ही होते हैं, या तो नंबर 1 एक ही होता है, नंबर 2 नहीं होते। एक्सेप्शनल सफलता पाने के लिए इस पेज में थोड़ी इंटरफेरेंस माँ बाप की भी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये पन्ना एक्सेप्शनल नहीं बन सकता। एक्सेप्शनल सफलता के लिए, नॉर्मल सफलता के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ। एक्सेप्शनल का मतलब जिसको दुनिया देखेगी तुम्हारे जाने के बाद, वो पेरेंट्स का आशीर्वाद के बगैर ये तीसरा पन्ना अधूरा है। अगर आप चाहते हो आप सबसे आगे बढ़ें, एक्सेप्शनल रहें ज़िंदगी के अंदर, और बता दूँ वैल्यू एक्सेप्शनल की है सिर्फ। बॉटनी के अंदर हमेशा ही सेरेंडिपिटी में पूछते हैं, डिस्कवरी बाय चांस, कौन सा पौधा ऐसा है जो कि अनयूजुअल है, अनकॉमन है। नॉर्मल पौधे का क्वेश्चन नहीं आता, एक्सेप्शनल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो इसलिए एक्सेप्शनल बनने की कोशिश हमेशा लाइफ में लगी रहनी चाहिए। मैं क्यों नहीं, मेरे में क्या कमी है, आई एम द बेस्ट, आई एम एट द टॉप। तो जब तक आपके दिमाग के अंदर ये जादू चलता रहेगा, आई एम नंबर 1, यही चीज़ कहलाता है लॉ ऑफ रेपिटेशन। जो चीज़ आप रिपीट करते रहो लाइफ में, आप वैसे ही बन जाओगे। और अगर लाइफ में रिपीट करना बंद कर दिया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमेशा इस दिमाग को एक पॉजिटिव खाद के साथ फीड करिए, हमेशा इसके अंदर पॉजिटिविटी हो,
और जब आप बड़े हो जाना इसके अंदर तो डेफिनेटली जितना कमाते हैं, जितना शोहरत कमाते हैं, जो रिसोर्सेज कमाते हैं, उसको देने की भी आदत साथ साथ लाइफ में डाल दीजिए। लॉ ऑफ गिविंग के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। आपको देना भी ज़रूरी है, क्योंकि देने में जो आनंद है वो लेने में कहीं भी नहीं है। आप देखते हैं कि नेचर हमें कितना कुछ देती है, हमसे क्या लेती है? मुफ्त में देती है। हवा चल रही है, हमें सांस देती है, हमसे क्या ले रही है? कुछ भी ले रही है। पानी मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो इसलिए जीवन में जो देता है, जो गिविंग का फिनोमेना है, वो भी आप याद रखें, भूलें नहीं कि जितना भी पढ़ लिख जाएँ, जितना भी कमाई कर रहे हैं, जितना भी पैसा आ जाए, जब आप देते रहेंगे तो उससे आपकी बढ़ोतरी और बढ़ती रहेगी। देने से कभी कोई गरीब नहीं होता, देने से कभी कोई परेशानी नहीं आती, कंगाली नहीं आती। देने से हमेशा बढ़ता ही है। जितना आप देंगे चीज़ें लोगों को, उतना ही आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए लाइफ के अंदर? कितना पैसा चाहिए और कहाँ क्या करोगे उस पैसे का भी? सवाल है कि जिस काम को करने में आपके मन को सुकून मिले, और वो सुकून बिना दिए नहीं मिल सकता। चाहे टाइम किसी को दो, चाहे पैसा दो, हेल्प दो, देने से ही सुकून है, लेने में कहीं नहीं है। तो अपनी हैबिट में एक बिल्टअप कर लो फिनोमेना कि मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे से कभी कोई लेने आएगा तो मैं उसको देने में झिझकूँगा नहीं, आराम से दूँगा उसको। और यही चीज़ आपको मन में संतोष देगी और बड़ा बनाएगी। तो लाइफ इसी तरीके से चलती रहे और सब लोग तरक्की करते रहें। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चे खूब तरक्की करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, और जीवन के अंदर ये याद रखें कि देना बहुत ज़रूरी है। गिविंग प्रिंसिपल को ना भूलें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ना भूलें। आजकल साइंटिस्ट अमेरिका में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो सैकड़ों साल पहले लिख के चले गए, आज उसको ढूंढते फिर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। आप जिस चीज़ को बार बार याद करेंगे, जिस चीज़ को बार बार बोलेंगे, उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल फिनोमेना लाइफ। So again, I congratulate all the parents and students at this occasion, and have a nice evening and have a nice time. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing the words of wisdom and beautifully explaining 3 pages of life. Thank you so much. Ladies and gentlemen, it's time for a special performance, and for that we have with us a child prodigy who was born in Amritsar, Punjab, started playing bansuri at the age of 3, started performing on stage at the age of 5. He has been trained under the tutelage of world-renowned flute virtuoso Pandit Hari Prasad Chaurasia. He came to the national limelight after he won a show on Indian classical music, which was telecasted on Doordarshan. Subsequently, in 2016, he captured nation's heart and emerged as a winner of India's Got Talent Season 7. And since then, he is grooving Bollywood and the entire nation to the tune of his flute. Ladies and gentlemen, let's welcome the bundle of talent, Master Suleiman. Well, thank you, Suleiman. Thank you for such a stellar performance. I must say that you have won many hearts today. It was such an enthralling performance. I could see the audience was literally spellbound. Really nice. Geeti Gayatri, along with her parents, for securing All India rank 100.
this profession very, very closely as someone who's been involved in medical entrance coaching for a very, very long time. First, I saw my brother who went through this challenge and he cleared and he joined Maulana Azad and he went through this journey. जब मेरा वक्त आया, जब मेरा मेडिकल एंट्रेंस क्लियर हुआ, तो he told me तेरे बस का नहीं है खून वून देखना, तू रहने दे. And I am till date I remember that conversation that I had with him, and I'm till date scared of that. I can't see. So I think इस प्रोफेशन में जो मैंने उसकी जर्नी देखी बड़ी क्लोजली, आपके माइंडसेट के अलावा जो आपका एक अंदर का इमोशनल क्वेश्चन है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है. जैसा देवदत्त also said, you will deal with eventualities on a day-to-day basis. And I'm recalling, a conversation that I had with my brother in the month of May 2021. In fact, me and my father were sitting early morning, and he sent a message, very, very emotional message. He was a fighter on the front foot. मतलब जैसे कहते हैं एक ऐसा मैसेज जिसको पढ़ के कोई भी इमोशनल हो जाए. वो कहने लगा कि मैं टूट गया हूँ. डॉक्टर्स को वापस आईसीयू में भेज के वो जाना नहीं चाह रहे हैं. इसलिए नहीं कि वो हेल्प नहीं करना चाहते, इसलिए कि वो हेल्प करते हैं फिर फेल हो जाते हैं क्योंकि नहीं बचा पाते. फिर हेल्प करते हैं, अपने आप को साथ लेते हैं, फिर वापस जाते हैं अंदर किसी की मदद करने, रात दिन ड्यूटी करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं. वो कह रहे हैं उनको मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ इस फेलियर से कि नहीं वापस जाओ फिर लड़ना है. और ये कंटिन्यूअस 40 दिन चला. तो ये जो एक प्रोफेशन है इसको नेक्स्ट टू गॉड इसलिए भी कहते हैं कि आप न ही केवल अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि, अपने स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जो उस ऊपर वाले ने एक सोच दी है, एक क्षमता दी है, एक सहानुभूति दी है, एक समृद्धि दी है, आप उसको भी पूरा यूज करते हैं इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए. तो जहां आप इस करियर में आगे जाएंगे, अगर आप इस चीज को साथ के साथ डेवलप करते हैं, you will become a name in this field to reckon with. There is no doubt. क्योंकि आपकी लाइफ में आगे इतने पड़ाव आएंगे जहां आपकी स्किल का फेलियर नहीं, आपके इमोशनल का फेलियर सामने आएगा और उससे खड़ा होके वापस लड़ना, दैट इज द रियल टेस्ट. तो एग्जाम के जो ये नंबर कम हो जाना, रैंक आगे पीछे हो जाना, ये कोई फेलियर या डिफीट नहीं है. रियल फेलियर लाइफ में आते हैं. मुझे याद है एक इंसिडेंट में अपने कॉलेज में था, जब MBA स्कूल में पहला सेमेस्टर था, हमारे मार्क्स आए. मार्क्स देख के सारे बच्चे हैरान थे, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो, एंट्रेंस टाइप में होते हो, तो आप भीड़ में चमक रहे हो. लेकिन जब आप किसी अच्छी जगह चले जाते हो तो वहाँ सारे चमकने वाले स्टार्स हैं, तो उनमें चमकना is a bigger task, and that is where you fail a very different and a very sharp failure. तो मैं अपने नंबर देख के बड़ा परेशान था, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर पे आते थे नंबर, तो इतने में ही
एक मेरा फ्रेंड मेरे कमरे में घुसा और कहता है कि क्यों परेशान क्यों है। मैंने नंबर देखो यार, ऐसे नंबर मैंने लाइफ में नहीं देखे हैं। वो कहता है ये फेलियर थोड़ी है। एंड दैट जेंटलमैन वाज अ मेजर इन द आर्मी एंड ही सेड फेलियर मैं बताता हूँ क्या होता है। ही वाज फ्रॉम पंजाब। ही सेड मैं दसदा तेरे फेलियर की होता है। He said I was commanding a unit and because of some mistake I gave a wrong command and people went right instead of going left and we lost 11 men. That's a failure which is irreversible. And I didn't sob for rest of my day or the week, but I learned from it. And I think a lot of learning will happen on the job for you guys also. There will be mistakes, there will be challenges, there will be failure, and you have to learn from it. कई बार क्या होता है ना, बच्चे अब यहाँ 720 आ गए, परफेक्ट स्कोर है, बट लाइफ में डोंट गो आफ्टर परफेक्शन, गो आफ्टर प्रोग्रेस. Am I becoming better? Is my today better than yesterday? Have I learned anything? Will I make the same mistake or not? So I think that is the attitude, that is something which I have seen a lot of people who have continued with that attitude and done excellent in their lives. Not only professionally but personally, but also at the society level. Because ये profession society से इतना जुड़ा हुआ है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते. तो उस लेवल तक की अचीवमेंट करने के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. और जिस राह पे आप लोग आज चल पड़े हैं, I think it is one of the most noblest professions, and I'm sure a lot of the parents who also are from medical background or experienced people in their family from this background can vouch for this. तो किसी भी नोबल प्रोफेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है. मुझे याद नहीं आप में से कितने लोगों ने स्पाइडरमैन पिक्चर देखी है. तो उसमें एक डायलॉग है, with a lot of power comes a lot of responsibility. So this gives you power to change lives, saves life, but there has to be responsibility. क्योंकि आने वाला समय जो मेडिसिन में आने वाला है, it will be very different. Medical science changes every 5 years. You can't be doing the same thing, you can't be learning the same thing, you can't have the same attitude for rest of your life. और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी, डिजिटल, जैसा सब लोगों ने कहा, चेंज हो रही है, I feel if there is a room right now in this country with the brightest medical minds, is this room. And it is on to these people that they make sure that they not only progress in this field of medicine but also become the torchbearer to change this field for the betterment of humankind in whatever field, whatever technology, whatever innovation that is required in the next, decades to come. So ये भी एक जिम्मेदारी आप अपने साथ लेके जा रहे हैं. सबसे बढ़िया बात क्या है कि you've gotten into a profession जिसमें भूखों नहीं मरेंगे. उस दिन एक आर्टिकल देखा, एक डॉक्टर जो है वो चाय की दुकान पर बैठ के चाय पी रहा था. तो बात में पता चला कि चाय वालों की वो डॉक्टर है, तो उसने अपनी बीमारियां 3-4 पूछना शुरू कर दिया. तो जो कस्टमर दूसरा चाय खरीद रहा था उसने भी सुन लिया, तो वो भी अपनी बीमारियां पूछने लग गया. और 7 दिन बाद उस डॉक्टर ने अपनी दुकान वहीं लगा दी और लाइन लग गई. तो आपकी दुकान कहीं भी लग सकती है, तो पैसे की तो चिंता कीजिएगा मत. लेकिन दुकान अच्छी लगे, ऑनेस्ट लगे, उसका नाम हो, उससे लोगों का भला हो, वो डिसीजन, वो चॉइस आप पे है. जैसे सर ने बताया कि वो मिडल का जो पन्ना है, उस पन्ने में आप क्या लिखते हो, कितनी खूबसूरती से लिखते हो और क्या इंटेंशन के साथ लिखते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एक शाम हम लोगों ने यहाँ पे रखी, बहुत मज़ा आया आप सबसे मिलके, और इतने ब्राइट स्माइलिंग फेसेस देख के हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है
कि अगले साल बेहतर करेंगे। तो मैं टीम से वही डिस्कस कर रहा था, वो सब यही कह रहे थे इससे बेहतर क्या होगा कि 3 बच्चे 720, इससे ऊपर 721 तो आएंगे नहीं। तो अब उनको भी टारगेट है कि भी हम 3 720 है, अगले बार 10 की ट्राई करेंगे, टॉप 10 रैंक्स हमारी होनी चाहिए। So I wish you all the very best on this beautiful, rewarding and wonderful journey. Please remember to be grateful to your parents, to your teachers, because without their blessing, that emotional strength will not come. वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह का ये पीरियड हमने पिछले 1.5 साल में देखा है, I think people who were emotionally stable, they sailed through well. Otherwise, काफ़ी लोग इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली ब्रेक डाउन कर गए। तो ये एक हमें सीख दे गया है ये कोविड का पीरियड कि अगर हमें सक्सेस लेनी है तो उसकी हम डेफिनेशन पैसे से, इमारतों से और अचीवमेंट से केवल ना रखें। अपने अंदर हम अपने आप को कितना डेवलप कर रहे हैं और उस डेवलपमेंट से हम अपने आसपास के लोगों को कितना सुरक्षित और डेवलप कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। May God bless them with a wonderful career in medicine, and they save lives and they become the benchmark for the new age of medicine that we all are eagerly waiting for ourselves. Thank you so much. आज का इवेंट हमने उन स्टूडेंट्स को अवार्ड देने के लिए किया है जिन्होंने ऑल इंडिया के अंदर बेस्ट रैंक अटेंड किए। रैंक नंबर 100 के बीच में जो बच्चे आए उन सबको बुलाया गया है, उनको प्राइज़ दिए गए हैं, अवार्ड दिए गए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी यहाँ पर है, जिसके 3 लोग फर्स्ट रैंक में हैं। 3 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 720 मार्क्स। तो ये करीब करीब मैं समझता हूँ कि 27वां साल है जो ऑल इंडिया फर्स्ट हमारे आ रहे हैं, 94 से आ रहे हैं। और ये इतिहास है पूरा अपने आप में, इतनी लंबी स्ट्रेच तक हमने फर्स्ट रैंक बनाते रहे। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क विद द स्टूडेंट्स आर डूइंग and the teachers are guiding to them at every stage. और सर, इस अचीवमेंट से बच्चों को आप क्या, इस बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अचीवमेंट्स जो होती हैं वो एक जॉइंट एफर्ट्स होता है सबका, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी। ये तीनों फैक्टर जब मिल के काम करते हैं तभी जाके ऐसे फर्स्ट रैंक आया करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये एक ज़िंदगी की अच्छी सुनहरी शुरुआत हुई है, लेकिन ये अंत नहीं है। अभी लाइफ में बहुत आगे अवार्ड भी लेने हैं। ये तो एक तरह से पहला अवार्ड है जिससे कि उनको एनकरेजमेंट मिले कि आगे चल के ऐसे अवार्ड और बहुत सारे लेने हैं। तो बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं, पेरेंट्स उनसे ज़्यादा खुश हैं, हम उनसे भी ज़्यादा खुश हैं। तो ये एक माहौल बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और सर, जो अब आगे आएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? आने वाले बेहतर होंगे, क्योंकि पिछले 33 सालों में हमारा ग्राफ और रिज़ल्ट कभी डाउन नहीं गया, बढ़ ही रहा है, आगे भी बढ़ेगा। ना रेवेन्यू कम हुआ है, ना रिज़ल्ट कम हुआ है, ना कुछ भी कम नहीं हुआ, सब बढ़ ही रहा है। जब से 88 से कॉलेज खोला, 12 बच्चों से लेकर आज तक हमारी ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स नंबर, इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो गॉड इज़ ग्रेट एंड ही इज़ हेल्पिंग अस इन दिस मैटर।